Hello student, I am Varun Kumar Nishad from LPM Public School. In this video, we will discuss about the new chapter, that is chapter 15, and the name is light. So light make things visible or reflection of light. And today we will discuss about these two heading, that is light make things visible and reflection of light. Dear student, we can see anything in the world with the help of eyes, and eyes are activated. Inside the eye, the images of the object is formed due to the reflection of light. If you want to see, if the thing make visible in the presence of light, so you can see easily things in the daytime, but cannot be seen in the night time without the light or torch or other light equipment. So dear student, point is that importance of light we will discuss in this chapter, that is luminous and non-luminous object, reflection of light, law of reflection, incident rays, reflected rays, substance that through which the light can pass, substance through which the light does not pass through them. These things we will discuss in this video in detail. So point is that light make things visible for the human eye. Dear student, if we're talking about the light through which we can see the outer world from our eye, and light fall on the object, and from the object light get reflected, and this light came to our eyes, and images are formed in the presence of light, and through which we can see the object. So light is a very important through which things make visible. On the basis of light are, on the source of light are two types, or things are two types, that is luminous and non-luminous body. Luminous and non-luminous body. Luminous and non-luminous body. Non-luminous body. Non-luminous body is, luminous body. The body are those which have its own lights. The body that is which have its own lights is known as luminous things. For example, a sun have its own light, stars have its own lights. So these are the luminous things, luminous object. But human beings, brick, chair, building, book, these are the moon, earth, these are the non-luminous things. So the things that is not its own lights, it is called non-luminous body. And but moon shine in the night in one month of 15 days in 1 month. How? Because it's due to the reflection of the sun rays fall on the moon, and moon get reflected. So that's why in the night time the moon shine due to the incident of sun rays and get reflected towards the earth's surface. So point is that, dear student, how we can see the object in the presence of light. It is a very simple phenomenon, very simple phenomena. The sun or any light
फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, अगर कोई लाइट यहाँ से फॉल होती है और यहाँ पे गिरती है, जब ये लाइट गिरेगी तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर यहाँ वाटर पे भी बात करेंगे, यहाँ पे इंक रखते हैं इंक पे भी बात करेंगे, और यहाँ पे मिरर रखते हैं तो मिरर की बात करेंगे, और यहाँ पे मिरर नहीं है, एक प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे कोई भी लाइट रेज फॉल हुई और लाइट रेज फॉल होकर क्या कर जाएगी, इसमें अब्जॉर्ब नहीं होगी, दे गेट इमिटेड, दे गेट रिफ्लेक्टेड। और ये जो यहाँ पे सपोज है, यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट जो है वो फॉल हुई, अब लाइट फॉल हो रही है और फॉल होकर यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस, सरफेस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लेन है, ये भी जैसे सरफेस प्लेन है बिल्कुल, यहाँ पे लाइट गिरेगी, गेट रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे जो प्लेन सरफेस पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम falling from the light fall on the surface and get reflected, and suppose that the it is goes to the eyes and images as form, these things make visible, और ये आईज से इनका इमेज बनेगा और आप सी कर पाएंगे, जो भी पर्सन यहाँ पे देख रहा है वो उसको उसके आईज में इमेज बनेगी। तो आईज में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब लाइट फॉल हो रही है और लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके स्प्रेड हो रही है, जब स्प्रेड हो रही है और उसी इंसिडेंट में से, उसी रिफ्लेक्शन में से हमारे आईज में कुछ रिफ्लेक्शन बनते हैं और इमेजेस फॉर्म होते हैं, और वो इमेजेस सेंड किए जाते हैं ब्रेन्स को, और ब्रेन एनालाइज करके ये फिर ब्रेन से हम एनालाइज करके वो आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये साइज, ये इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा है। तो सन रेज एनी लाइट सोर्स, लाइट इज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गेट रिफ्लेक्टेड, एंड रिफ्लेक्शन के थ्रू ही इसका इमेज बन पाता है आईज में। नाउ अगर शॉर्ट कंप्लीट जो है ये नहीं है, ये आपका प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा, अगर प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपने बीकर में वाटर फिल किया हुआ है, जब बीकर में आप वाटर फिल किए हुए होंगे तो यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे लाइट या टॉर्च जलाते हैं, जब टॉर्च ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट आएगी और लाइट आकर फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ पे चली जाएगी। अब कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, फ्रॉम द बीकर। बीकर क्या है, एक सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस से ये रेज कहाँ गिर रही है, फॉल यहाँ से टकराई, स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के थ्रू जब आईज से हम इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमको उसका इमेज फॉर्म होता है। इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन, बट वाटर में कहाँ पे, वाटर में रिफ्लेक्शन, वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यहाँ से यहाँ से होगा, लेकिन कम होगा, लेकिन यहाँ पे भी रेज आएंगे। नाउ पॉइंट, अनदर पॉइंट, that is a reflection of light, plane mirror, plane surface, and reflection of light. Simply Distant, we are note that the light are travel in a straight line. So light, if you light fall, if a light fall on the object, fall on a plane surface, then get, but
But in case of रेज फरो ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे सरफेस यहाँ से इस तरह से सन रेज और कोई भी लाइट सोर्स अगर यहाँ पे फॉल होता है तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। सो इट इज अ कॉल्ड एज, ये जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ये होगा रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट ये क्या होगा, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। देखिए रिफ्लेक्शन तो सेम है, बट डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल है। सिंपल ये है कि अगर आप सरफेस को देखें, एक सरफेस में प्लेन है, एक सरफेस क्या है, प्लेन है, लेकिन एक सरफेस क्या है, एक सरफेस जो है वो रफ खुरदुरा है, रीज फर्रो है, एक रीज है, फर्रो है, प्लेन नहीं है। तो जहां से रेज गिरेंगी वो कैसी होगी, वो डिफ्यूज्ड होगी, डिफ्यूज्ड मैनर में इनका रिफ्लेक्शन है। तो रेज आर ऑलरेडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट द रेगुलर रिफ्लेक्शन इज a regular diffused reflection, is the reflection of rays is totally depend on the प्लेन पे डिपेंड करता है कि प्लेन वो उसका जो सरफेस है, ये सरफेस, दोनों सरफेस है, सरफेस उसका प्लेन या रफ। अगर प्लेन जो उसका सरफेस होगा वो रफ होगा तो उनका रिफ्लेक्शन डिफ्यूज होगा, अगर उनका सरफेस प्लेन होगा तो उनका रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा। इससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी आपको इस बेसिस पे आप लेंस के बारे में समझ सकते हैं, इस बेसिस पे आप फोकल लेंस के बारे में समझ सकते हैं, इस बेसिस पे आप जो है टॉर्च की लाइट होती है उसको समझ सकते हैं, जो रियर व्यू मिरर होता है जो व्हीकल्स में लगे होते हैं, बस ड्राइवर के पास लगा होता है, टू व्हीलर राइडर के पास लगा होता है, तो जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं इसमें रेज कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो फोकल जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट का पूरा असेंबली जो होता है वो पूरा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है कि उसका एक छोटा सा ही बल्ब होता है, लेकिन उसकी जो फोकल लेंथ होती है काफ़ी लेंथ पे होती है, काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन अगर उस बल्ब को बाहर निकाल दें और बाहर निकाल के ग्लो करें तो उतना दूर तक नहीं जाएगा, डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ये कंफर्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस की वजह से हो रहा है, बिल्कुल रिफ्लेक्टिव सरफेस की वजह से हो रहा है। एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट की जाती है उसके लाइटिंग असेंबली में। तो ये दो तरह के रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन के थ्रू ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कवर कर पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप का है, और रिफ्लेक्शन में 2 टर्म और है। एक टर्म है इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज वो होती है जो सोर्स से ऑब्जेक्ट पे फॉल होती हैं, सपोज आप टार्च जला दिए और रात में टार्च आपने जलाया, किसी के कोई एनिमल है उसके ऊपर आपने जला दिया, तो आप जो टार्च ऑन करेंगे और वो लाइट फॉल होंगी, तो जो लाइट गिर रही है किसी एनिमल पे, मान लीजिए डॉग पे गिर रही है, तो वो जो डॉग पे गिर रही है, जो टार्च से
आपकी जो टार्च की रेज गिर रही हैं तो उनको बोलेंगे इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज आर दोज लाइट रेज विच फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स। जो सोर्स से ऑब्जेक्ट पे फॉल होती हैं उन्हें बोलते हैं इंसिडेंट रेज। बट रिफ्लेक्टिंग रेज, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेज, अगर आपने टॉर्च ऑन किया एनिमल के ऊपर और एनिमल आपको दिखने लगा, मींस दैट एनिमल से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आपके आईज तक आ रही है और आईज में उस एनिमल का इमेज फॉर्म हो रहा है। और इमेज फॉर्म होने की वजह से वो किसकी वजह से हो रहा है? ये रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज अ टर्म्स which are related from the light, incident rays and reflected rays। और रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का। we know that already the light travel in a straight line, but the reflection is two types because it depend on the surface. If the surface is plain, the reflection will be regular reflection. If the surface is rough or ridge furrow, अगर ridge मतलब उभार होता है, ये ridge इसमें आप देख सकते हैं ये रिज है और ये फर्रो है। तो रिज फर्रो अगर किसी सरफेस पे है, रफ है, रेगुलर नहीं है, प्लेन नहीं है, तो क्या होगा? जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वो क्या होगा? डिफ्यूज्ड होगा। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट वी कवर द टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू द चैप्टर दैट इज लाइट, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टिंग surface, type of reflecting surface, and in the next video we will discuss about the another aspect. Thank you.